Let's now get you the condition that is being seen in other states here as well, apart from just Maharashtra and Delhi. The COVID spike that is being noticed in the state of Gujarat, already having broken the back of the health infrastructure there. Lack of ambulances, a long wait at hospitals, even a long wait at crematoriums here that is causing much pain and inconvenience to the worst affected here of the second wave. These are some of the reports now that are coming in from the state as people are continuing to cope with this crisis. Gujarat having logged, but remember this is the official figure here, having logged 64 deaths since yesterday, overflowing dead bodies that have overburdened crematoriums this time around as well. There's been a threefold increase in dead bodies, which is why crematoriums are overflowing, what the visuals of which we are playing out on your screen. This is coming in from Surat. Metal surfaces here that are crumbling because of non-stop burning. Usually on a given day, on a normal day, there is a resting time of about an hour or so. But now because the flood of the bodies being so high, there is no resting time for the iron, for the metal to rest either. Crematoriums that have been working 24/7 for the past 1 week. In yet another horrifying story that is being reported from Surat, this is regarding 27-year-old Parin Shah, who was seen carrying his 60-year-old COVID-positive mother on a handcart in the middle of a night. He is alleged here that local panchayat authorities who have refused him a van and did not allow to get the body cremated at a village crematorium initially. Now, the visuals here that you can see the man carrying a handcart. These are images that have now gone viral on social media. Earlier in the day, he'd spoken to Mirror Now, and this is how he narrated his ordeal. सर जी देखो, मेरी मम्मी ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ किडनी में स्टोन था, ठीक है। तो 1 बजे मेरी मम्मी को अचानक श्वास का प्रॉब्लम चालू हो गया, 1 बजे। तो 1 बजे मैं इधर के लोकल हॉस्पिटल में गया, तो लोकल हॉस्पिटल में उन्होंने ऐसा बोला कि आपके मम्मी का जो श्वास का प्रॉब्लम है बहुत कम हो गया है, आपको तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी इनमें, ठीक है। तो मैंने पूरा सूरत में और इधर ओलपाड़ गांव में, मेरे गांव में सब जगह हॉस्पिटल में गया, वेंटिलेटर कहीं पे उपलब्ध नहीं हुआ, कोई जगह वेंटिलेटर खाली नहीं था। तो बाद में 7 बजे तक मैंने ट्राई किया वेंटिलेटर का, लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिला, तो मेरी मम्मी 7 बजे एक्सपायर हो गए। तो इधर के लोकल डॉक्टर को बुलाया चेक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई है, शायद कोविड हो सकता है। तो मैंने उसका जो प्रिकॉशन है जो कोविड के हिसाब से, तो उनका जो मैंने सेफ्टी है वगैरह वो ध्यान में रख के ऐसा सोचा कि भाई तुरंत ही उसका अग्नि संस्कार के जो लोकल पंचायत है तो वहां का कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने किसी ने का फोन रिसीव नहीं किया। और जो इधर का स्मशान भूमि के जो ट्रस्ट है उधर भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने चाबी नहीं दी हमको, क्योंकि इधर का स्मशान रात को बंद था, ठीक है। तो बाद में हमने सब वाहिनी का मांगी उनके पास, तो सब वाहिनी भी नहीं दी हमको। और बाद में 2-3 घंटे हो गए, और बाद में 3 घंटे के बाद हमने वापस फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आपको चाबी दे देते हैं, आप अपने हिसाब से जो पता दीजिए काम आपका। तो बाद में हमको सब वाहिनी का बोला, तो सब वाहिनी उन्होंने हमको प्रोवाइड नहीं किया। बाद में हमको ये लॉरी पे ले जाना पड़ा, क्योंकि कोविड के हिसाब से हम रात को कर्फ्यू भी था, इधर कोई थे नहीं, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई हमको, इसकी वजह से बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ। Well, it's also been a long and final journey from some of the people who lost their lives in COVID in Ahmedabad. This is now yet another case coming in of a person named Manoj Chawda, who lost his aunt to COVID, had a harrowing time there to get her cremated. First, he had to wait multiple hours just to get his family member's body from the hospital there. Even more hours for an ambulance. Unable to get an ambulance, he arranged for a private vehicle to the crematorium. Even there was a long wait ensued for him. This is his ordeal. डेड बॉडी विभाग में जाके हम बॉडी के लिए गए, तो उन्होंने बोले तुम्हारी बॉडी 2 घंटा वेटिंग है, तुम्हारी बॉडी 3 घंटा वेटिंग है। काफ़ी हम लोग हैरान हो गए। फिर हम लोगों ने पहचान लगाई, पहचान थ्रू हमको हमारी बॉडी मिले, ऐसा कुछ काम किया, तो बॉडी तो मिल गई।
लेकिन बॉडी मिली उसके बाद उन लोगों ने कोई एम्बुलेंस का कोई शववाहिनी का कोई नहीं कुछ करके दिया। बोले 3 घंटा वेटिंग है शववाहिनी, 4 घंटा वेटिंग है एम्बुलेंस। उसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी करी, तो प्राइवेट गाड़ी में उन लोगों ने डेड बॉडी लेने का मना कर दिया। बोले प्राइवेट गाड़ी में हम लोग डेड बॉडी नहीं देते, बोले एम्बुलेंस करो। एम्बुलेंस वाले को बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर रहे थे, तो वो 2 घंटा वेटिंग बता रहे थे, 3 घंटा वेटिंग बता रहे थे। फिर डेड बॉडी लेके हम स्मशान गए। तो स्मशान गए, वहाँ पर भी हमको अंदर एंटर नहीं होने दिया। बोले 1200 बेड में से जो बॉडी आई है हम एंटर नहीं होने देंगे। फिर हम लोगों ने हमारा रिपोर्ट बताया कि ये नेगेटिव रिपोर्ट है। तो नेगेटिव रिपोर्ट बताने के बाद मान वहाँ के शमशान के अधिकारी माने। Manoj Chaura, of course, had uploaded this video on social media. In fact, he's connected with us right now. Manoj Chaura जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। ये जो हालत है अहमदाबाद में, आपने अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा सबको समझाया कि कितनी ख़राब हालत है। क्या ये सिर्फ अस्पताल में बेड मिलने का है क्राइसिस? क्रेमेटोरियम में उतना ही क्राइसिस है, उतनी ही लंबी लाइन लगी है? आप हमारे चैनल के ज़रिए अभी गुजरात सरकार को क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं कोरोना काल में जो गुजरात सरकार है वो पूरी तरह काम करने में सफल नहीं रही है। हेलो हेलो जी बताइए। ये कोरोना के जो ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इसमें गुजरात आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। उनकी ये सरकार जो है वो इसमें ये कोरोना के मामले में तो सफल नहीं रह पाई, क्योंकि अगर सफल होती, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय इतना अगर सफल होता तो आज ये जो हालत कोविड 1200 बेड की है वो हालत नहीं होती। मैं 2 से 3 दिन वहां पर मेरे एडमिट थे, मेरी बड़ी माँ। तो मैडम इतनी तकलीफ हुई है कि क्या कहे, अब हम तो इंसान भी खो चुके। तकलीफ जब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे ऐसे इधर कितने ऐसे है इंसान जो आड़े इधर रोते रहते, अच्छे भले इंसान आए, चलते इंसान आए और डेथ होके गिरा रहे हैं, तो कैसा लगे? उसमें अपने किसको यही हो सकता है कि ये सरकार, ये यहाँ का प्रशासन, जो यहाँ के अधिकारी वो सही ट्रीटमेंट दे नहीं रहे। हेलो मनोज जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सेकंड वेव, ये जो दूसरा वेव आया है कोरोना का, ये नहीं संभाल पाई है, मगर अगर गुजरात सरकार से पूछा जाए, उनका ये कहना है कि आंकड़े सही हैं, हालत संभली हुई है, ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। क्या आपको लगता है कि आंकड़े भी कम बताए जा रहे हैं? गुजरात सरकार खुल के बता नहीं पा रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, वो नकार रही है कि जमीनी सच्चाई क्या है इस वक्त? मैडम, मैं तो एक मामूली एक आम जनता का एक इंसान हूँ। आप तो मीडिया वाले, आप तो सिविल कोविड 1200 बेड में अगर आप 1 घंटा 10 मिनट अगर आप जाओगे, 10-15 मिनट, तो आपको वहाँ की हालत क्या है आपको आप मालूम पड़ जाएगा मैडम। हेलो, आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं आएगी। आप अगर वहाँ जी बिल्कुल। हाँ, हेलो हेलो मनोज चावड़ा, many thanks for speaking to us. आपका धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। Viewers watching us here, this is just one example, a victim of the crisis who had lost his aunt to COVID, and he has very much in detail explained, as you just heard here, that he had a long waiting line in hospital. Then there was a long waiting line to receive the mortal remains, the body, back from hospital, and yet another waiting line queuing up at the crematorium. A very clear sign here that even in the figures that the state of Gujarat is releasing on a daily basis is not reflecting the huge numbers or the real crisis on ground, as you would get to hear from a common man in the worst affected cities of Surat and Ahmedabad in Gujarat. With that, we're slipping into a very tiny breather. Stay on with us here, please.